بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ملک عرب کا ایک بادشاہ تھا، نام تھا قیس۔ یہ بادشاہ بہت ہی رحم دل اور سخی تھا، ہر ایک سے مہربانی سے پیش آتا، ہر چھوٹے بڑے امیر غریب سب کو ایک نظر سے دیکھتا۔ تو بھائی، اس بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس کا نام تھا پروین۔ یہ ملکہ بھی بادشاہ کی طرح اچھے خیالات رکھتی تھی، رات دن دونوں اچھے کاموں اور رعایا کی فلاح و بہبود کی تدابیر سوچا کرتے تھے۔ لیکن بادشاہ کو ایک فکر تھی، وہ تھی اولاد کی۔ اتنی عمر ہو گئی تھی مگر گود ابھی خالی تھی اور آپ کو یہ امید بھی نہ تھی۔ بادشاہ ہر وقت مغموم رہتے۔ ایک روز بادشاہ حسرت اور یاس کا پیکر بنے دربار میں گئے۔ تمام درباری بادشاہ کے چہرے پر اداسی دیکھ کر سخت حیران ہوئے، مگر کسی کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ بادشاہ سے اس پسماردگی کی وجہ پوچھے۔ آخر وزیر اٹھا اور دست بستہ بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا، ذل الہی، حضور کی اس خاموشی اور اداسی کا کیا سبب ہے؟ سب درباری حیران ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اور اب کچھ امید بھی نہیں۔ میں اس خیال سے کانپ جاتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد لوگوں میں راج تقسیم کرنے پر جھگڑا ہوگا اور میری رعایا کا خون ناحق ہوگا۔ وزیر نے عرض کیا، علیجا، حضور نا امید نہ ہو۔ اس شہر میں ایک پیر مرد رہتے ہیں جو ایسے ضرورت مندوں کو ایسی دوا دیتے ہیں جس سے ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ آج ہی ان پیر صاحب کے پاس تشریف لے چلیں، شاید انہی کی دوا سے نور نظر سے چشم منتظر روشنی پائے۔ تھوڑی دیر بعد دربار برخاست ہوا اور شام کو وزیر اور بادشاہ ایک ایسے مقام کی طرف روانہ ہوئے جو شہر کے آخری حصے میں واقع تھا۔ دور ایک پگڈنڈی تھی جس کی بائیں جانب ایک خانقاہ تھی جو بہت بوسیدہ تھی۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر خانقاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر نے بعد السلام عرض کیا، حضور جہاں پناہ آئے ہیں، یہ تو جناب کو علم ہی ہے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے اور اولاد سے گود خالی ہے۔ یہ سن کر پیر صاحب اٹھے اور صندوقچے میں سے ایک پڑیا دی اور کہا، عالم پناہ، اسے 14ویں رات کو 12 بجے ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے ملکہ عالم کو کھلا دے، مگر یاد رہے پورے 12 بجے یہ کھلائیے گا۔ خدا نے چاہا تو 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوگا، مگر یہ بھی یاد رہے کہ پیدائش کے 14 سال تک اسے بھنورے میں رکھنا، یعنی اپنی نگہبانی میں رکھنا، اپنی نظر میں رکھنا، ورنہ آپ کو سخت مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ بادشاہ اور وزیر نے پیر صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور رات ہونے سے پہلے یہ دونوں خانقاہ سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ خوشی خوشی محل میں داخل ہوئے۔ ملکہ نے خوشی کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے تمام واقعہ کیسے سنایا۔ ملکہ بھی سن کر بشاش ہو گئی۔ چاند کی 14ویں کو 12 بجے محل کے باغیچے کے ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے ملکہ عالم کو بادشاہ نے وہ دوا کی پڑیا دی جو پیر صاحب نے دی تھی۔ ملکہ نے بسم اللہ پڑھ کر اسے پھانک لیا اور خدا تمہارا بھلا کرے۔ 9 مہینے بعد ملکہ کے ہاں ایک چاند سی لڑکی پیدا ہوئی جس کے سنہری بال، کٹورا سی کالی کالی آنکھیں، لمبی گردن، پتلے پتلے ہونٹ اس کے حسن پر سہاگا کا کام کر رہے تھے۔ سب سے پہلے جو خادمہ بادشاہ کے پاس یہ خوشخبری سنانے گئی، اس کی جھولی ہیروں سے بھر دی گئی اور وہ دعائیں دیتی واپس آئی۔ ملک کے چاروں طرف مسرت اور شادمانی کے مظاہرے ہوئے۔ رات کو چراگاہ ہوا، امیروں غریبوں میں حسب مراتب انعامات تقسیم ہوئے اور ایک خاص انعام پیر صاحب کو بھی پیش کیا گیا۔ اور بھائی، ہم تم کو نام بتانا تو بھول ہی گئے، تو سنو بھائی، شہزادی کا نام عذرا رکھا گیا، سمجھ گئے؟ اسی روز شہزادی عذرا اور ملکہ کو ایک شیشے کے محل میں بھیج دیا گیا جہاں سوائے بادشاہ کے کوئی نہ جاتا تھا۔ جب عذرا کچھ بڑی ہوئی تو اس کے لیے ایک شاہی استانی کا بندوبست کیا گیا جو عذرا کو تعلیم دیتی تھی۔ اوقات تعلیم کے بعد شہزادی عذرا بیکار پڑی مسیری پر کروٹیں بدلا کرتی۔ اب وہ تنہائی اور اکیلے رہنے سے بہت گھبرائی، یہاں تک کہ اب ہر وقت روتی رہتی۔ ملکہ نے رونے کی وجہ معلوم کی۔ شہزادی عذرا نے اپنے اکیلے پن کا رونا رویا۔ ملکہ نے اسے بہلانا چاہا اور کہا کہ 1 سال اور رہ گیا ہے، پھر ہم اس محل سے چلے جائیں گے اور پھر تم سب سے ملنا۔
तुम्हारी अच्छी अच्छी सहेलियां होंगी, उनसे खेला करना। हजार बहलाया फुसलाया मगर शहजादी न मानी। आखिर मलिका ने मजबूर होकर बागीचे में भेज दिया ताकि फूलों और परिंदों से दिल बहलाए। अजरा बागीचे में गई और वहां दिन भर खेलती रही और रात को बागीचे से आ गई। कई रोज तक बराबर यही होता रहा। आखिर शहजादी अजरा की तबीयत उस बागीचा के सैर व तफरी से भी भर गई और मलिका से कहा कि मेरे साथ रहने और तफरी के लिए सहेलियां होनी चाहिए। मलिका ने बहुत टाला मगर अजरा न मानी। आखिर मलिका ने यह सोच करके बादशाह को क्या खबर होगी, छुपवा चोरी चंद लड़कियां उमरा की बुलवाई। नेज मलिका ने ख्याल किया कि इतनी सी मुद्दत बाकी रह गई है, अब क्या होना है। शहजादी अजरा अपनी नई सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई और दिन भर उनसे खेलती रहती। जब बादशाह के आने का वक्त होता तो वो लड़कियां अपने अपने घर चली जाती। एक रोज का जिक्र है कि शहजादी अजरा बाग में सैर कर रही थी कि वो सब घूमते घामते बाग के एक कोने में आ खड़े हुए। शहजादी ने देखा सामने गुलाब का एक बहुत ही खूबसूरत फूल लगा है। शहजादी ने अपनी एक सहेली से कहा, नीलम, ये वही जगह है ना जहाँ हमने खुद वो पौधे बोए थे, मगर आज उनकी जगह ये गुलाब का पौधा कहाँ से आ गया। नीलम ने कहा, नहीं शहजादी साहब, वो कोई और जगह होगी, बात आई गई हो गई। अजरा ने गुलाब के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि आनन फानन इस जोर की आंधी आई कि खुदा की पनाह। तमाम आसमान पर तारीकी की घटा टॉप बादल छा गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। भाई तुम तो डर गए, कहानी सुनो, डरो मत। हाँ, तुम्हें कह रहा था। अजरा और उसकी सहेलियां डरकर भागी। अजरा ने भागना चाहा मगर उसका हाथ पौधे से चिमट गया। लाख छुटाए न छुटा। एकाएक ही वो गुलाब का पौधा भग से गायब हो गया और उसकी जगह जादूगर खड़ा था। शहजादी का हाथ उसके हाथ में था। शहजादी बेहोश थी। वो कहके लगा रहा था और फिर शहजादी को अपने हाथों पर उठाया, ये जा वो जा। थोड़ी देर बाद घटा आहिस्ता आहिस्ता हटी, तारीकी दूर हुई तो तमाम सहेलियों ने गुल मचा दिया कि जादूगर शहजादी को उड़ा कर ले गया। इस खबर वहशत असर से दरबार में कोहराम मच गया। बादशाह और मलिका का बुरा हाल हुआ। खुशी की जगह सब पे मातम बिछ गई। हादसा ही ऐसा जानगदाज और अलम अंगेज था कि मलिका को जितना भी कम होता कम था। मलिका ने खाना पीना, बादशाह ने दरबार जाना छोड़ दिया। वजीर और उमराए दरबार ने बादशाह के गम को गलत करने की कोशिश की मगर सब बेसूद साबित हुई। दिन गुजरते रहे। एक दिन बादशाह वजीर के बहुत कहने सुनने पर दरबार चले गए और शहजादी अजरा को उस जादूगर के पंजे से छुड़ाने की तदाबीर सोचने लगे। बिलाखिर ये तय पाया कि मुल्क में ये ऐलान किया जाए कि जो शख्स शहजादी अजरा को जादूगर के पंजे से आज़ाद कराएगा उसे बादशाह सलामत 50,000 अशरफियां इनाम देंगे। चुनाचे बहुत से बहादुर शहजादी अजरा को तलाश करने के लिए गए और दौरान तलाशी में सब के सब मर खप गए। अब ये हाल हुआ कि दूसरों की हिम्मत पस्त हो गई और कोई जाने के लिए तैयार न होता। आखिर बादशाह ने दोबारा 1,00,000 अशरफियों के इनाम का ऐलान किया और ये ऐलान शहर के एक ऐसे मोहल्ले में पहुंचा जहां एक दर्जी रहा करता था। कज़ा इलाही से उसकी पहली बीवी मार चुकी थी। उसका एक नौजवान लड़का था, नाम था अस्कर। दर्जी ने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ अस्कर को हकीकी माँ की तरह रखती थी, मगर जब उसके यहाँ बच्चा हुआ तो उसका रवैया अस्कर के साथ बदल गया। मोहब्बत नफरत में और रहमो करम जुल्म सितम में तब्दील हो गए। उस मादर के हाथों अस्कर के सर पर गुना गुम वसाइब के पहाड़ टूटने लगे। तमाम दिन की खिदमत के मुआवजे में रात को सूखे टुकड़े खाने को मिलने लगे। न सिर्फ ये बल्कि आए दिन मारपीट हिस्से में आई। हर वक्त नए भाई को गोद में लिए रहता। अगर वो रोता तो अस्कर को सदा देकर रुलाया जाता। सौतेली माँ हर वक्त दर्जी के कान भरती रहती जिससे वो अस्कर को खूब मारता। बेचारे अस्कर की क्या मजाल कि दम मार सके। मजबूर था, चुपचाप जबर सहता और सबर के तल्ख घूंट पी लेता। जब अस्कर ने मुल्क मुअज्जम का ये ऐलान सुना तो बहुत खुश हुआ और सोचा कि क्यों ना अजरा को तलाश किया जाए। अगर उस रास्ते में मर खप गया तो अच्छा है, जिंदगी अजीरन हो गई है। रोज की मार धार से छुटकारा हासिल हो जाएगा और अगर किस्मत से अजरा मिल गई तो पाँव 12 है। 1,00,000 अशरफियों का ढेर कब्जे में होगा। किस्सा को था असगर उसी वक्त चंद बासी रोटियां लेकर या किस्मत या नसीब कहता हुआ चल पड़ा। दिन भर के सफर के बाद शाही महल में पहुंचा। बादशाह अस्कर को देखकर बहुत खुश हुआ और रात भर महल में आराम करने को कहा। अस्कर राजी हो गया। सुबह हुई। अस्कर कुछ खाने पीने का सामान लेकर
अजरा की तलाश में चल खड़ा हुआ। कई दिन वो लगातार चलता रहा। आखिर एक दिन वो थक कर चूर हो गया और एक दरख्त के नीचे सो गया। 2 रोज बराबर सोता रहा। जब अस्कर की आंख खुली तो क्या देखता है कि शानदार महल है, कनीजें और ख्वासें इसके इर्द गिर्द खड़ी हैं और पंखा झुल रही है। अस्कर ने हैरतजदा होकर कहा, मैं कहाँ हूँ? एक परी मुस्कुराई और कहा कि तुम इस वक्त परिस्तान में हो। मैं तुम्हारे देश से वापस आ रही थी कि तुम्हें बेखबर लेटा पाया। मैं समझी तुम बेहोश हो। बहुत सी तदबीरें तुम्हें होश में लाने की मगर तुमने आंख न खोली। आखिर में तुम्हें यहाँ ले आया और शुक्र है कि तुमने आज 2 रोज बाद आंख खोली है। तुम कौन हो? अस्कर ने कहा, मेरा नाम असगर है और मैं अपने मुल्क की शहजादी अजरा को तलाश करने में सरगर्दा था, जिसे जादूगर ले गया है। कई रोज तक चलते चलते मैं बहुत थक गया था। एक दरख्त के नीचे सो गया और अब अपने को यहाँ पाता हूँ। आपका नाम क्या है ए रहम दिल परी? परी ने जवाब दिया कि मेरा नाम सुरैया है और ये लो खड़ाओ, इन्हें पहनकर तुम अपने देश पहुंच सकते हो। खड़ाओ यानी कि जूतियां। अस्कर ने कहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद न करोगे? परी ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, चलो एक खंजर, इससे तुम जादूगर को हलाक कर सकते हो। अस्कर बोला, जादूगर कहाँ रहता है? परी ने जवाब दिया, वो आजकल तुम्हारे ही देश में है। तुम इन खड़ाओं को पहनकर जहां जाना चाहो ये तुम्हें वहीं पहुंचा देंगे। अस्कर ने कहा, अच्छा अब इजाजत दो रहम दिल परी। इतना कहकर अस्कर ने खड़ाओ पहनी और कहा कि मुझे जादूगर के महल के पास ले जा। ये कहना था कि अस्कर उड़ने लगा और थोड़ी ही देर में वो जादूगर के महल के सामने खड़ा था। अस्कर ने खड़ाओ बगल में दबाई और महल के दरवाजे को खोलना चाहा, मगर वो नहीं खुला। वो अभी कुछ सोच रहा था कि किसी की गरिया बाजारी की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला। असगर एक तरफ कोने में दुबक गया। जादूगर ने कहा, उड़न मटन तेरे खुल जाएं 2 बटन, आए अगर कोई तो भुन जाए उसका सरा। और दरवाजा खुल गया। जो चला गया। अब असगर ने भी यही कहा। इन अल्फाज के कहते ही दरवाजा खुल गया। असगर अंदर पहुंचा। महल जगमग जगमग कर रहा था। छतों पर हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे। दीवारों पर खूबसूरत पिचकारी थी। कमरे के पर्दे सुनहरे तारों के बने हुए यानी जरबफ्त के थे। एक मेज बीच में रखी थी जिस पर एक थाल में बतख के अंडे के बराबर लाल, याकूत, नीलम पखराज रखे हुए थे। दूसरे थाल में और तरह तरह के जवाहरात थे। एक सब्ज तश्तरी में निहायत ही कीमती हीरा रखा था। मेज के करीब ही सोने की एक सुराही थी जिसमें शरबत था। उससे आगे चलकर छोटे छोटे मुतअद्दिद कमरे थे जो सोना चांदी से भरे थे। यहाँ से फिरता फिराता वो बागीचे में जा निकला जहाँ खूबसूरत फूल और पौधे लगे हुए थे और उन पर खूबसूरत परिंदे खुशहाली करने में महू थे। अब अस्कर को अजरा की जुस्तजू थी। चुनाचे सामने वाले कमरे में उसे तलाश किया तो न पाया। एक कमरे में से वही आहोजारी की आवाज आई। अस्कर ने कान खड़े किए और आवाज का पीछा किया। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। अस्कर ने कबाड़ का शीशा तोड़ा और देखा कि शहजादी अजरा एक मसेहरी पर पड़ी जारो कतार रो रही है। खूबसूरत अजरा आज सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा थी। गमो अलम में घुल घुल कर नीम जा हो गई थी। अस्कर ने जोर से कहा, अजरा रो मत, मैं तुम्हें जादूगर से छुड़ाने के लिए आ गया हूँ। अजरा बदसतूर रोती रही। अस्कर ने फिर कहा, अजरा दरवाजा खोलो, मैं हूँ अस्कर, तुम्हारे अब्बा ने मुझे भेजा है। अजरा ने अब्बा का नाम सुनकर दरवाजा खोला और कहा, तुम अब्बा के पास से आए हो? यहाँ किस तरह आए? यह तो जादूगर का महल है, वो तुम्हें भी मार डालेगा। जादूगर हर रोज बहुत से इंसानों को पकड़ कर लाता है और उन्हें भून कर खा जाता है। अस्कर ने कहा, अब जादूगर मुझे नहीं मार सकता, बल्कि उसकी जिंदगी के दिन भी पूरे हो गए हैं। और हाँ, तुमने ये क्या हालत कर रखी है? अजरा ने जवाब दिया, जब से जादूगर मुझे यहाँ लाया है मैंने खाना पीना छोड़ दिया है और उसी ने ये हालत कर दी है। परसों से वो मुझसे शादी के लिए सर हो रहा है, मगर मैंने इनकार कर दिया है। मगर उसने कहा है कि अगर तुमने मुझसे शादी न की तो तुम्हें तिलस्मी असर से पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। मैंने फिर कोई जवाब न दिया। अस्कर ने कहा, अच्छा आज जब वो आए तो उससे कहना कि मैं तुमसे शादी करूंगी। वो खुश हो जाएगा और तुम उसे थपक थपक कर सुला देना और एक खंजर उसके सीने में पेवस्त कर देना। ये खंजर जहर में बुझा हुआ है, फौरन अंतड़ियां काट देगा। थोड़ी देर में जोर की गिड़गिड़ाहट हुई और जादूगर मौजूद हुआ और सीधा अजरा के कमरे में गए। अस्कर एक कोने में हो रहा और जादूगर ने पूछा, बोलो, शादी के लिए राजी हो? मेरे पास 3 बादशाहों की दौलत है। अजरा ने कहा, कहाँ है? जादूगर बोला, इस मसेहरी के नीचे दफन है। जादूगर ने फिर कहा, राजी हो? अजरा, मैं राजी हूँ।
اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے بولی، تم تھک گئے ہوگے، سو جاؤ۔ جو عذرا کی مہربانی اور اس کو موافق دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سو گیا۔ عذرا نے وہ زہر آلود خنجر جو کہ سینے میں پیوست کر دیا۔ جادوگر ایک زبردست چنگھاڑ کے ساتھ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اصغر جادوگر کی تمام دولت اور عذرا کو لے کر عرب گئے، جہاں بادشاہ اور ملکہ چشم براہ تھے۔ بادشاہ اور ملکہ عذرا کو پا کر بے انتہا خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اصغر کو 1,00,000 اشرفی کے ساتھ اپنی دامادی میں لے لی، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ جیسے اللہ نے اصغر کو کامیابی عطا کی، ہمیں تمہیں عطا کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔